Hello everyone. So dear students, once again I am back here with a new chapter, chapter 3 of our honeydew, that is glimpses of the past. And this chapter was written by S.D. Sawant. So before starting the chapter, let me introduce you to the writer of this chapter. Okay? So here he is the person who wrote this chapter as name S.D. Sawant about the glimpses of the past. It means the war which was going on between 1757 to 1857, means the revolution which was going on which led to the war in our country. So he had written this chapter and he had given the history which was quite wide. हमारी हिस्ट्री तो काफ़ी वाइड है जिसको एक बार में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में उन्होंने जो 7-8 मीन्स देयर आर एटलीस्ट 9 इंसिडेंट्स एंड ही हैड डिस्क्राइब दिस इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। यानी उन्होंने हिस्ट्री के जो रेवोल्यूशंस हुए उनको बहुत ही शॉर्ट में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। So the name of this person, full name is Shivaji Sawant. He was born on 31st August 1940 and he was an Indian novelist which in Marathi language. He was also known as Mrityunjay Kar. The name of this is meaning is the author of Mrityunjay, and he was famous for writing Marathi novel Mrityunjay. That's why he was named with the name of Mrityunjay Kar. ही वॉज द फर्स्ट मराठी राइटर, मीन्स वो पहले ऐसे मराठी राइटर थे जिनको मूर्ति देवी अवार्ड दिया गया था इन 1994. Now here we will see the biography of this person. He was born on 31st August 1940, Ajra, which is in Kolhapur district, which is in Maharashtra. And he died on 18 September 2002 at the age of 62 in Goa in India. By occupation he was an author, teacher and even an editor. He wrote a book Mrityunjay, means victory over death, which was based on Karn, which was the leading characters of the epic महाभारत. आपने एक कर्ण नाम का कैरेक्टर सुना होगा महाभारत में, उनके ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी थी. और दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, in English, कन्नड़, गुजराती, मलयालम एंड इसी सब्सक्रिप्शन के लिए उनको काफ़ी अवार्ड्स भी दिए गए. और उसके बाद उन्होंने छत्रपति संभाजी के ऊपर भी एक नावल लिखी थी छाव. और इवन ही होल्ड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र साहित्य परिषद सिंस 1995. And he was also the president of Baroda Sahitya Sammelana of 1983. Now after having this introduction of this person, let us move towards a chapter. So here see glimpses of the past. Glimpse का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक झलक, ठीक है. तो हम पास्ट की जो भी रेवोल्यूशंस या जो भी हुआ हिस्ट्री में उसकी एक झलक हम पढ़ेंगे. So before starting this chapter, let us have a look over before you read. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. मतलब 1757 से लेकर 1857 तक जो भी हिस्ट्री हुई हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में, उसकी कुछ झलक इस चैप्टर में दी गई है. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence, that in 1857. तो स्पीच बबल्स यानी जब हम आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो उसमें स्पीच बबल्स यानी कन्वर्जेशन के रूप में दिया जाता है, जिसको आप इंटरेस्टिंग भी लगती है और समझने में भी ईजी होता है उस स्टोरी को. सो दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो रिटन इन सच अ वे so that it would be easy for us to understand. Now first, here there are 9 parts of this chapter, मतलब इसमें 9 इवेंट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट तो है मार्टियर्स, सेकंड है कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, थर्ड है ब्रिटिश रूल, फोर्थ
It's about Raja Ram Mohan Roy. Fifth is about the operation. Sixth is about the dissatisfaction. Seventh is the sparks. Eighth is revolt. And ninth and the last one is the fight for freedom, that is till 1857. तो इन सारे 9 इवेंट्स के बारे में जो 1757 से लेके 1857 तक हुए, इनके बारे में हम शॉर्ट ग्लिम्स देखेंगे. फर्स्ट इज़ अबाउट द मार्टियर्स. मार्टियर्स आर दोज पीपल, दोज कंट्रीमैन हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री. उनको हम मार्टियर्स कहते हैं. नाउ एट अ फंक्शन इन दिल्ली, लता मंगेशकर who sang a song of ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. So this song she's during at a function of Delhi, and at that function who all were present you could see here in the picture. हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कौन कौन है. पंडित जवाहरलाल नेहरू हमको नज़र आ रहे हैं, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, और वन मोर लेडी शी वॉज प्रेजेंट देयर, यू कुड इफ़ यू कुड रिकॉग्नाइज इंदिरा गांधी. एंड व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज हियरिंग दिस सॉन्ग, व्हेन ही हर्ड दिस सॉन्ग, जब वो ये गाना सुन रहे थे तो उनके माइंड में किन किन फ्रीडम फाइटर्स की इमेजेस आ रही थी, तो ये भी हम उस बबल में देख सकते हैं. दैट इज़ अबाउट झांसी, है ना, दैन लोकमान्य तिलक, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस. तो इन सब की इमेजेस इनके माइंड में उस समय आ रही थी, जिन्होंने अपने लाइफ अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मार्टियर्स. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, एंड दैट इज़ द कंपनीज कॉन्क्विस्ट, मीन्स हाउ these people conquered over India. Okay, and what was the reason behind, क्या रीज़न था कि ये जो कंपनीज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया, कॉन्कर किया, हमारे इंडिया को डिफीट किया, जिसको हम कब्ज़ा करना भी कह सकते हैं. ठीक है, जीतना, हासिल करना. इट वॉज ड्यूरिंग 1757 एंड इट led till 1849. Now let us start first with the introduction, how this East India Company ruled over our India and have control over it. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. And at that time in 18th century, हमारे इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एम्पायर कैसे एक्सटेंड किया, यानी कैसे बढ़ाया, बिकॉज ऑफ द सुपीरियर वेपन्स. सुपीरियर यानी हमसे भी ज़्यादा अच्छे हथियार उनके पास थे, और यही रीज़न था, इन्हीं हथियारों की वजह से इन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया. नाउ हियर इन द मैप यू कुड सी हियर द येलो पोर्शन एंड पिंक पोर्शन इज़ गिवन देयर. तो ये जो है, अब देखना आप, इसी मैप को हम जब आगे का पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट जब हम इसका पढ़ेंगे, तब इस मैप को आप देखना. तो जस्ट कीप इन माइंड द येलो पोर्शन हमारे इंडियन प्रिंसेस, यानी हमारे इंडिया का जो राज फैला हुआ है, ठीक है, राजा, वो सारा है. और जो पिंक पोर्शन है वो ब्रिटिश टेरिटरी है. ठीक है, अब ये पिंक पोर्शन आगे जाकर कितना बढ़ता है, कितना ये हमारे इंडिया के प्रिंसेस को कवर करता है, उनके ऊपर कब्ज़ा करता है इंडियन राज्यों के ऊपर, वो हम देखेंगे. तो जस्ट कीप इन माइंड दिस मैप कि येलो पोर्शन कितना है और पिंक पोर्शन कितना है. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. हमारे इंडिया के जो राजा थे, प्रिंस थे, वो शॉर्ट साइटेड थे. शॉर्ट साइटेड के मतलब ये कि वो इन फ्यूचर किसी भी काम का रिज़ल्ट, इन फ्यूचर उसका क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचते थे, है ना. तो हमारे इंडिया के जो राजा महाराजा वगैरह थे, ये सारे शॉर्ट साइटेड थे. ये फ्यूचर में किसी भी चीज़ का क्या रिज़ल्ट हो सकता था वो कभी भी नहीं सोचते थे. दैट अपस्टार्ट राजा
कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। मतलब ये कि हमारे इंडिया में सबसे वीक पॉइंट ये है कि जो आज भी है, डेट पीपल आपसी झगड़ों की वजह से दूसरों को मौका देते हैं हमारे कंट्री में इंटरफेयर करने का। यानी उस समय आपसी झगड़ों की वजह से इन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प लेने की सोची, है ना। यानी अपना जो भी ऑपोजिट राजा होगा, चाहे वो इंडियन ही है, लेकिन उससे बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाने की सोची। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। तो इन्हीं आपसी लगातार लड़ाई झगड़ों की वजह से लोगों के बीच में शांति, पीस नहीं था। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो राइवलरीज यानी ये आपसी झगड़ों की वजह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया। उन्होंने कौन सा रूल अपनाया, आप सबने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एसएस में, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और यही रूल इन्होंने अपनाया, इन आपसी झगड़ों का इन्होंने फ़ायदा उठाया। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और इस तरह से इन लोगों को, हमारे इंडियन प्रिंसेस को, इंडिया के राजाओं को उनके राज्य पर कब्जा करने में काफ़ी मदद मिली और धीरे धीरे इन्होंने अपना कब्ज़ा शुरू किया। सबड्यू का मतलब किसी चीज़ को हराना, उसके ऊपर कब्ज़ा करना, अपने वही अधीन करना। एट दैट टाइम अ फार सीइंग रूलर, ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, ही फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। अब टीपू सुल्तान ऐसे किंग थे जिनको पता था कि ये जो ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में कर रही है, ये धीरे धीरे हमारे देश को बर्बाद कर देगी, हमारे इंडिया पर कब्ज़ा कर लेगी। और ये चीज़ ये भाप गए थे। एंड व्हाट ही स्टार्टेड फाइटिंग विद दिस ब्रिटिशर्स। और जब तक इन जान रही, इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की और बहुत ही कम एज में इनकी डेथ भी हो जाती है। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। नाउ जब ये कॉन्क्वेस्ट चल रहा था, कॉन्क्वेस्ट यानी जिस तरह से ईस्ट इंडिया हमारे इंडिया को कॉन्कर कर रही थी, कब्ज़ा कर रही थी, जीत रही थी, तो इसके ऊपर इंडिया का क्या रिएक्शन था, हमारे इंडियंस का क्या रिएक्शन था, वो क्या सोचते थे, दैट देयर इज़ पीस इन द कंट्री, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। यानी इन ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे इंडिया में पीस है, शांति हो गई है, कहीं लूट मार नहीं हो रही है। इट इज़ गॉड हु सेंड ब्रिटिशर्स, यानी दे आर थैंकिंग गॉड फॉर सेंडिंग दिस ब्रिटिशर्स। वो यूँ सोचते हैं कि ठीक है, भगवान की वजह से ये ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडिया में शांति हो रही है। पर ये नहीं पता कि ये ब्रिटिश अंदर ही अंदर कितनी बड़ी गेम जाल बिछा रहे थे। आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ दैम, यानी हमारी किस्मत इन लोगों से जुड़ी हुई है। यानी ये इंडियंस बहुत बड़ी गलतफहमी अपने माइंड में पाल रहे थे। ये नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स अंदर ही अंदर हमारे ऊपर कितना कंट्रोल, कितना कब्ज़ा कर रहे हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डीथ्रोन्ड आवर किंग्स। जिन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि द वाइट मैन मीन्स दिस ब्रिटिशर्स हैड किल्ड एंड डीथ्रोन्ड आवर किंग्स। किल्ड एंड डीथ्रोन्ड का मतलब कुछ राजाओं को ये मार रहे हैं, और डीथ्रोन्ड का मतलब उनकी सिंहासन पर, उनके राज्य पर कब्ज़ा करना, ठीक है, उनको उनके राज्य से हटा देना। तो ये चीज़ें इनके माइंड में चल रही थी। सम किंग्स वर नॉट गुड बट दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ ये लोग कहते कि भले ही हमारे कंट्री के राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन आखिर में वो हमारे भाई बंदी थे, है ना। आफ्टर ऑल दे वर ऑल्सो इंडियंस, दे शुड नॉट हैव बीन किल्ड दिस वे बाय दिस ब्रिटिशर्स। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। मतलब ये कि अब हम अपने देश में ही इन अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए हैं। सो हियर इट इज़ द इवेंट which held between 1757 to 1849 when the East India Company started conquering over our Indian
territories. Third point is the British rule that started from 1765 to 1836. Now at that time हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रिलीजियस प्रीचर्स थे. रिलीजियस प्रीचर्स यानी जो रिलीजन से रिलेटेड धार्मिक बातें करते हैं, है ना, प्रचार प्रसार करते हैं धर्म का, वैसे लोग थे. और ये लोग किसको बढ़ावा दे रहे थे? अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज. These people preach ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the sea loses his religion. मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन सागर के पार जाएगा वो अपने धर्म से, अपने रिलीजन से अलग हो जाएगा. किसी का ये मानना था कि ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन. मतलब कि इस दुनिया में सारे दुखों का कारण कौन है? वुमेन, स्त्रियाँ. ठीक है, लेडीज़ को वो इस दुनिया में दुखों का कारण मानते थे. तो ऐसे ऐसे रिलीजियस प्रीचर्स थे. द ट्रूथ वॉज डैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट. सच तो ये था कि इंडियंस जो थे, हमारे सारे जो भारतीय थे, वो खुद का ही स्वाभिमान, खुद का ही रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे. इन्होंने अपने आप को इन अंग्रेज़ों का गुलाम बना दिया था. लेकिन ये जो अंग्रेज़ थे ये उनको अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे, हम जिसको हमारी लैंग्वेज में चमचा कहते हैं, चमचागिरी करना, किसी की चापलूसी करना, तो इसी तरह से कुछ इंडियंस ऐसे थे जो इन अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे. अपने ही राजाओं की, अपने ही देश के सारे सीक्रेट्स उनको जाकर बताना. ठीक है, किसके लिए? जस्ट फॉर फ्यू मनी, कुछ पैसों के लिए इन्होंने अपनी ईमानदारी इन अंग्रेज़ों के लिए बेच दी थी, इन अंग्रेज़ों को बेच दी थी. यू कुड सी देयर द नेटिव्स आर अनट्रूथ ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. अब अंग्रेज़ ये समझ गए थे कि ये इंडियंस जो है ये खुद के ही इंडियंस के, यानी अपने ही कंट्रीमैन के से ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, तो ये हमसे क्या ऑनेस्ट होंगे. ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. कुछ ऐसे चापलूस या चमचागिरी करने वाले लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो वफादार हूँ, मैं आपसे कभी भी दगाबाजी नहीं करूँगा. बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. मतलब ये कि अब ये जो अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे ये मर्चेंट्स थे, व्यापारी, और ये अपना व्यापार यहाँ पर फैलाना चाहते थे. और वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे. तो उन्होंने क्या किया? टैक्स लगाना शुरू कर दिया, सबसे ज़्यादा किसानों पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके. एंड दे फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स. और इसी वजह से, हैवी टैक्सेस की वजह से क्या होता था, ये लोग बेचारे जो फार्मर्स थे हमारे इंडियन, ये टैक्स नहीं पे कर पाते थे, तो इनसे इनकी ज़मीन छीन ली जाती थी. नाउ हियर यू कुड सी दिस पीपल बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. जैसे ही खेती होती थी उनके लोग आकर सारी फसल ले जाते थे. और अब फसल नहीं होने की वजह से वो क्या बेचे? पैसा नहीं आने की वजह से वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे, और यही रीज़न था कि उनकी ज़मीन ज़ब्त कर ली जाती थी. तो इस तरह से ज़मीन भी हड़पते थे, इन लोगों से टैक्स भी लेते थे, इनका सारा अनाज भी ये अंग्रेज़ लोग लूट लेते थे. स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स. अब इससे भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं थे, तो इन्होंने दूसरे मेथड्स निकाले ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया. मतलब ये कि इन्होंने सोचा कि जो गुड्स यानी जो माल इंग्लैंड में बनाया जाता है और उनको जब भारत में लाया जाए तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए. ठीक है, तो अब इनका ही राज था, तो इससे तो ये प्रॉफिट में रहते थे.
द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब इनके इन रूल्स की वजह से क्या हुआ, हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे अपंग, क्रिपल बनती जा रही थी, यानी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। Inevitably, famines followed. Between 82 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. मतलब ये कि जैसे हमने यहाँ पर ये जो रूल पढ़ा, इसकी वजह से क्या हुआ कि फेमाइंस फॉलोड, यानी कि अकाल जैसी हालत होने लग गई, और उस वजह से काफ़ी जो फार्मर्स थे वो भूख के मारे मरने लगे। और आप देखो कितनी एक्सटेंट में ये लोग मरे, 15 lakh Indians. We can't even imagine such a big number of people died because of starvation. Starvation यानी भूखमरी की वजह से, भूख की वजह से इतने सारे लोग 1822 से 1836 तक मर गए। The British policies ruined the expert artisans and their business. और इन ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, इनके रूल्स की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ तो ख़त्म होती ही गई, उसके साथ साथ जो आर्टिसंस थे, आर्टिसंस यानी जो अपनी आर्ट के थ्रू चीज़ें बनाकर बेचकर कमाते हैं, है ना, जो अपने हाथों से चीज़ें बनाते, चाहे वो मिट्टी का काम करने वाले हो, चाहे कपड़ों का काम हो, बुनाई का काम हो, तो ये लोग का क्या हुआ, धीरे धीरे बिजनेस ख़त्म होने लग गया और हमारे इंडिया में इन लोगों की ruined मतलब डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई। ओके, सो हियर इन दिस थर्ड पार्ट वी read about the British rule, how this British ruled over India from 1765 to 1836. Okay, now remaining 6 parts are there. So point 4, 5 and 6 we are going to read in our next part of our video, and 7, 8 and 9 we will read in our third part of our video. Okay, so have a look over whatever we have read till now.